شکر گزار ہیں آج کا عنوان ہے بڑا خاص ہے، یسوع نام اور قوموں کی عداوت۔ یسوع نام اور قوموں کی عداوت، آمین۔ اس کے لیے دو حوالہ جات ہم تلاوت کریں گے۔ پہلا حوالہ ہے متی کی انجیل ہے اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت ہوگی۔ یہ پہلا حوالہ ہے، اور بعد میں جو حوالہ ہم تلاوت کریں گے آپ نشان رکھ لیجئے گا۔ متی ہی کی انجیل ہے اور اس کا 24 باب ہے، متی 24 باب اور اس کی 9 آیت۔ دو حوالہ جات تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حوالہ ہم متی کی انجیل پہلا باب اور اس کی 20 آیت 21 آیت، دوسرا حوالہ متی کی انجیل اور اس کا 24 باب اور اس کی 9 آیت، آمین۔ کیا آپ نے نکالا جی؟ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 20 لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے، کس کے فرشتہ نے؟ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ خاص آیت ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، آمین۔ اب دوسرا حوالہ جلدی سے آئیں گے جی۔ 24 ہے متی کی انجیل 9 آیت، اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ چرچ ادھر سامنے دیکھیے گا جی، سنو۔ یسوع نام آسمان سے بھیجا گیا نام ہے۔ آسمان پر ڈیسائیڈ ہوا کہ خدا کا کلمہ جب مجسم ہوگا تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے؟ یسوع نام۔ کون سا نام؟ پھر خداوند کے فرشتہ نے، کسی اور کے فرشتہ نے نہیں، کیونکہ ابلیس کے بھی فرشتگان ہیں جو ساتھ گرائے گئے، اس لیے متی کہتا ہے کوئی وہم میں نہ رہے۔ یوسف کے ساتھ ہم کلام ہونے والا فرشتہ خداوند کا ہے، پاک پیغام آیا ہے۔ وہ ڈر رہا تھا لوگ کیا کہیں گے، بیوی اس کی منگیتر حاملہ ہو گئی۔ خداوند نے کہا فرشتہ کے ذریعے سے مت ڈر، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے اس کی اصل انسان نہیں ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے اس کی نسل انسان نہیں ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا ذریعہ انسان نہیں ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا وسیلہ انسان نہیں ہے، روح القدس کی قدرت اور خدا ہے۔ اس کا نام یسوع رکھا گیا۔
चर्च सुनो, नाम शनाख्त को पेश करता है। शनाख्त होती है इंसान की नाम के साथ। दूसरी बात, नाम इख्तियार को भी पेश करता है। इख्तियार, यीशु नाम का माना नजात दहिंदा। यीशु नाम का माना नजात दहिंदा। आमीन। तो नाम से शनाख्त होती है। आमीन। नाम इख्तियार को भी पेश करता है। मिसाल दूंगा, कोई शख्स डॉक्टर बन जाता है तो वो डॉक्टर है, पीछे उसकी असल क्या है इसको छोड़ो, वो डॉक्टर है। आमीन। उसका इख्तियार जाहिर कर दे, ये डॉक्टर है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी किसी भी ओहदा से, तो वो नाम है। शनाख्त भी है, शनाख्त भी है और इख्तियार भी है। आमीन। अब सुनो, दूसरा हवाला जो हमने तलावत किया वो ये है, यहां खुदा अपने फरिश्ता को भेज दे, यीशु नाम लिख, इसका रखो, इस लड़के का जो पैदा होगा। आमीन। इस बेटे का नाम क्या है? सब बोलो यीशु। और जब वो खुद तालीम देता है, मसलूब होने से थोड़ी देर पहले कहता है, सुनो, मेरे नाम के वसीला से सब कौमें, एक दो कौम नहीं, सब कौमें तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगी, अदावत रखेंगी, यीशु नाम के वसीला, यीशु नाम के सबब से। अब सुनो, खुदावंद क्यों वो हमसे क्यों अदावत रखेंगे? याद रखिएगा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे खानदान की वजह से तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे, तुम्हारी जात के जरिए से, वसीला से या सबब से तुम्हारे साथ अदावत रखेंगे। नहीं, मेरे नाम, यीशु नाम के सबब से, और एक दो कौम नहीं, सब कौम है। सुनो, अदावत रखने का सबब क्या है खुदावन? सुनो, कौमें आज भी और तब भी जब खुदावंद इस जमीन पर थे, मसीह को नबी मानने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वो एक अच्छा उस्ताद मानने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, वो एक मुकद्दस पाक हस्ती जो बगैर बाप से पैदा हुआ मानने के लिए तैयार। तुम कहो हम खुदा की इबादत करेंगे, उनके कर लो। हम यहोवा की प्रस्तिश करेंगे, कर लो। किसी और अंबिया के नाम से हम दुआ नमाज करेंगे, कर लो, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे हम खुदा के बेटे यीशु की इबादत करना चाहते हैं, अदावत है। किसी और माबूद की वजह से कोई अदावत नहीं। तुम जब खुदा के बेटे का नाम लोगे, अदावत है। और सब कौमें इस बात पर मुत्तफिक हैं, वो खुदा का बेटा नहीं। इसका क्या सबूत है? इसका क्या सबूत है पास्टर कि सब कौमें मिलकर हमसे अदावत रखेंगी? है ना? ये 10-15 दिन हो गए हैं, इधर देखने सबने। अमेरिका में
بحث چھڑ گئی ہے, سوشل میڈیا پر جنگ چھڑ گئی ہے. آپ نے دیکھا نا یہاں بھی, پاکستان میں بھی اور بہت سے ممالک میں بھی, یہ جو کوک والے ہیں, کوکا کولا والے ہیں, یہ کمپنی نام لکھ کر بھی بوتلیں بیچیں گی, فلاں نام ہے فلاں نام ہے. دیکھا آپ نے کبھی کین پر, بوتلوں پر نام لکھا ہوتا ہے. تو امریکہ کے اندر ان کی ویب سائٹ پر یہ لکھا ہوا آیا کہ جس کسی نے جو بھی نام لکھوانا ہو وہ ہماری سائٹ پر جائے اور وہاں پر وہ اپنا نام ایڈ کرے. ہم پیسے زیادہ لیں گے, لیکن اس کا معاوضہ ہم لیں گے, لیکن وہ نام کی وہ جو بوتل ہے, کین ہے, وہ ہم تمہیں دیں گے. لوگ شروع ہو گئے دھڑا دھڑ. لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کے نام لکھے, انہوں نے لکھ دیے. لیکن جب ایک ایماندار نے لکھا جیزس از لارڈ, یسوع خداوند ہے, آپ کو پتہ ہے کوپ کی ویب سائٹ نے کہا یہ ویلڈ نہیں. یہی ریسنٹلی اس نے کہا یہ نہیں تم لکھوا سکتے, یہ نہیں لکھا جا سکتا. کسی نے ٹرائی کیا, اس نے لکھا شیطان لکھنا چاہتا ہوں, انہوں نے لکھ دیا. یہ کمپنی کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے نا. یہ پروڈکٹ کس کی ہے؟ اسرائیل کی. ارے وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں تو کفر بکتا ہے, تو خدا کا بیٹا, انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے. سب قومیں مل جائیں گی اور عداوت رکھیں گی. اور کسی کے نام پر کوئی اعتراض نہیں, یسوع نام پر اعتراض ہے. اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اب سنو, یہ کیسے ممکن ہوگا کہ خداوند نے کہا سب قومیں میرے سبب سے تمہارے ساتھ عداوت رکھیں گی. ان کی تو اپنی بڑی دشمنیاں ہیں آپس میں, ایک دوسرے کو وہ مار مار کر ہلکان کر رہے ہیں. کیا یہ دشمنی دوستی میں بدلے گی؟ ہاں بدلے گی, اور میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں. کیونکہ یسوع نام جہاں بھی ہوگا وہاں دشمن دوست بنیں گے. ہی از پرنس آف پیس, وہ امن کا شہزادہ ہے, وہ صلح کا شہزادہ ہے. جب یسوع مسیح کو کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں اسے مصلوب کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, کبھی دیوان خانہ میں, وہ کاہنوں کے دیوان خانہ میں, کبھی پلاطوس کے پاس گئے یسوع کو لے کر عدالت کے لیے, تو نے کہا یہ گلیلی ہے, وہ تو علاقہ ہیرودیس کا ہے, وہاں لے جاؤ. جب وہ ہیرودیس کے پاس لے کر گئے, ہیرودیس نے کہا یار اسے پلاطوس کے پاس لے گئے, لے جاؤ. سنو, لوکا کی انجیل اور اس کے 23 باب میں لکھا ہوا ہے, اسی دن, کس دن؟ جب وہ پلاطوس ہیرودیس کے پاس بھیج رہے یسوع کو, اور ہیرودیس پلاطوس کے پاس, لکھا اسی دن, یہ لوکا کی انجیل اور اس کے 23 باب کی 12ویں آیت, اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے, کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی. ان کے درمیان جب یسوع آیا تو دشمن دوست بن گئے. جب مسئلہ یسوع کے قتل ہوگا, جب مسئلہ یسوع کی عداوت کا ہوگا, تو دشمن دوست بنیں گے, کیونکہ بیچ میں یسوع آ گیا ہے. اب سنو, ہم نہیں یہ کہتے ہم کوک کا بائیکاٹ کریں, یا مطلب ہم اسے کیا کریں, اس کو نہ پیئیں. سنو, ارے کیا ہوا,
कोक नाम लिखे किसी बोतल पर या ना लिखे, जब यीशु नाम का मकाम आसमानों पर सबसे बुलंद है तो बुलंद ही रहेगा, वो बुलंद ही रहेगा और ऊंचा ही रहेगा। अब सुनो चर्च, मैंने स्टार्ट में ये कहा, अब सुनो अदावत का सबब क्या है। सुनो, नाम एक शनाख्त है। आमीन। नाम क्या है? शनाख्त है। और नाम इख्तियार को भी पेश करता है। प्राइम मिनिस्टर भी एक नाम है। आमीन। उसके कुछ इख्तियार हैं। अब कौमों के लिए मसला ये बन गया है, और तब भी था, यहूदियों के लिए और कौमों के लिए, जब मसीह जमीन पर थे। सुनो, नबी आए, मूसा जैसे अजीम नबी, हम उनकी इज्जत करते हैं, हर नबी की इज्जत करते हैं। अब सुनो, वो राह हक की तालीम देते थे। नबी जितने भी आए क्या करते थे? राह हक की तालीम देते थे। अदावत का सबब बताने लगा हूं। लेकिन जब यीशु आता है तो वो ये नहीं कहता अच्छी राह पर चलो, राह हक पर चलो। वो कहता है राह हक और जिंदगी मैं। उन्हें कह यार, उन्होंने से वक्त बन गया। अरे वो नबियों को सुनते रहे, नबियों के पीछे चलने वाले ईमानदार लोग हैं भाई, वो भी। ये कुफर है, ये कुफर है। अब शरीयत में लिखा है अगर किसी से खता हो जाए, खता की कुर्बानी गुजराने मुआफ होगी। आमीन। जुर्म हो जाए, जुर्म की कुर्बानी मुआफ होगी। लेकिन जब यीशु आता है तो कहता है बेटा तेरे गुनाह मुआफ होगा। उफ, अरे को फरबकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? इधर देखो सब, अरे उसका नाम यीशु रखा गया, वो इंसान बना, इंसान था नहीं, इंसान बना। आमीन। लेकिन उसकी असल खुदा है। खुदा गुनाह माफ कर सकता है। हाँ, उसने कहा मैं बाप में से, खुदा में से निकला और आया। इसलिए इब्ने आदम को इस जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। सबब बन गया ना अदावत का। वो कहते मूसा, तू मूसा से बड़ा है, तू अब्राहम से बड़ा है। खुदा ने कहा बड़ा, सुनो, इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं। फिर मुसीबत बन गई। ये बातें कैसी कर रहा है? अरे तेरी उम्र तो 50 साल की भी नहीं। तू क्या? उन्होंने कहा भाई जी गलत हरकत है, इस तरह नहीं हो सकता। चर्च सुनो, ये कैसे हो सकता है कि ये खुदा का बेटा, खास खुदा का बेटा अपने आप को कहता है? अब सुनो, लूका की इंजील क्या कहती है। इधर देखो, लूका की इंजील के पहले बाब में लिखा है जब्राइल फरिश्ता नासरत की पाक कमारी के पास आता है, उसको सलाम करता है, वो डर जाती है और कहते हैं खौफ ना कर, डर ना, तू हामिला होगी, देख तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो हमें कहते हैं, तुम क्यों कहते हो? जाओ जब्राइल ना भी गल कर लो। अरे आसमानी नाम है,
तमाम कौमों के जितने भी कौमें उनके भाइयों से मैं प्यार करता हूं क्योंकि मेरा यीशु प्यार करता है। राय देता हूं, मसीह को पुकार कर देखो। एक बार घुटने टेको ना और कहो, खुदावन यीशु हम पर जाहिर हो, ते जे जिंदा होया तो जरूर जाहिर होएगा। चर्च सुनो, अब फरिश्ता क्या कह रहा है? वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा ताला का, बोलो खुदा ताला। अब सुनो, जब वो बड़ा होता है, यीशु, बोलो यीशु, बड़ा होता है, बपतिस्मा लेता है, तो ऊपर से जिसका बेटा वो आवाज देता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। जाओ उससे पूछ लो, अरे आसमान दुहाइयां दे रहा है, आसमान लोगों के, हजारों लोगों की मौजूदगी में शख्सी तौर पर हर जगह कह रहा है ये बेटा है यीशु। फिर सवाल उठा देते हैं, कौमें उठाती हैं, उन्हें तो नहीं ना क्या कि मैं खुदा दा बेटा वा, तेजे क्या होए थे। चलो हवाला, ये हवाला वेखना सी। आमीन। यूहन्ना 10 बाब है, यूहन्ना 10 बाब, यूहन्ना 10 बाब निकाला आपने? आयत नंबर 36 आया, 36 निकाला आपने? यूहन्ना की अंजील 10 बाब और उसकी 36 लिखा है, आया तुम उस शख्स से, मसीह अपने बारे में, यीशु अपने बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने, जिसे बोलना आपने, जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। मैंने कहा है और हूं। चर्च सुनो, ये उसी वक्त की बात है। यहूदी बार बार कहते थे तो कुफर वक्त है। कहते क्या करते हो? मैं वाकई हूं। अब सुनो, सब लोग इकट्ठे हो गए, पिलातूस भी वहां पर था। आमीन। सब लोग इकट्ठे हुए, सरदार काहिन वहां था, वो जो मजलिस सनहेड्रिन उनकी थी, सारी मजलिस वहां थी। अब इकट्ठे होकर पता क्या यीशु को कहते हैं? सच बता, तू खुदा का बेटा है? इधर देखो क्या कहते हैं, सच बता तू खुदा का बेटा है। यीशु मसीह ने कहा तुम कहते हो और मैं हूं। उन्होंने पहला जरा बावत रात रू पाया, यीशु मसीह ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ और जनाब खिंचिया तो उन्होंने ही पे सारी पलटन सूबेदार यानी इत्थे वे 100 सिपाही है, बाकी सारे असी वड्डियां कुर्सियां ले, वड्डे चर्चा वाले, त्रै थरू जाएगा। अरे वो कलमा मुजस्सम है, उसमें इंसानी जात नहीं कि वो डरे, वो जाते खुदा है। उसने कहा तुम कहते हो ना और मैं हूं। अब सुनो, फरिश्ते ने कहा वो है बेटा है, फरिश्ते ने कहा यीशु बेटा है, खुदा का बेटा है। खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा का बेटा हूं।
ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਾਰੀफ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁश्मन करे। आ जाओ मत्ती की अंजील में आओ जल्दी से। मत्ती की अंजील और उसका बाब नंबर 27। मत्ती की इंजील और उसका बाब नंबर 27 है। निकाला आपने? मैं 50 आयत से पढ़ रहा हूं। हमारी मेन आयत जो है वो 54 है। आमीन। 54 वर्स है हमारी मेन, लेकिन मैं 50 आयत से पढ़ने लगा हूं। आमीन। है सबके पास? लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और पढ़ना है ना आपने, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को। अब खास शायद सुनो, बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे, जो उसके साथ किसकी निगहबानी करते थे? यीशु की निगहबानी करते थे, भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा था, ये खुदा का बेटा है। अरे क्यों वो डर गए? एक सेंचुरियन सूबेदार कैसे? अरे 100 सिपाहियों का लीडर डर गया। कितनी शख्सियात सलीब पर चढ़ी होंगी, कितने लोगों को उन्होंने मसलूब किया, लेकिन किसी के मरने से भूचाल नहीं आया, किसी के मरने से चट्टाने नहीं तड़की, किसी के मरने से मुर्दे जिंदा नहीं हुए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यीशु खुदा का बेटा है, वो बेटा है। चल सुनो, वो खुदा का बेटा था, वो खुदा का बेटा है, और वो खुदा का बेटा रहेगा। सुनो, अदावत रखने वालों से मैं दुर्हास करता हूं बड़े प्यार के साथ। वो जो मुर्दों में से जी उठा है ना, उसके साथ दूसरे नबियों को ना जोड़ो। मैं दुर्हास करता हूं, वो सिर्फ नबी भी है, लेकिन सिर्फ नबी नहीं, वो खुदा का बेटा भी है। यीशु सिर्फ एक मजहबी शख्सियत नहीं है, वो निजात का वाहिद वसीला है। बोलो यीशु, सब बोलो यीशु निजात का वाहिद वसीला है। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से निजात पाए, सिर्फ यीशु नाम है। मुआसना करना छोड़ दो दूसरे नबियों के साथ। ये मेरी दुर्हास है, हुक्म नहीं दे रहा, दुर्हास है। वो बाइख्तियार है, वो बाइख्तियार है। सुनो, अब जब ये लफ्ज कौमों को हम कहते हैं ना, उनको फिर फैसला करना पड़ता है कि क्या करें।
सुनो, यीशु मसीह सिर्फ मजहबी राय नहीं देता कि बेटा इस तरफ चलो तो बच जाओगे। वो इख्तियार के साथ कहता है, इधर देख लो सब, वो इख्तियार के साथ कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। चर्च सुनो, यीशु मसीह को तो संसार करने लगे थे, मारने लगे थे। मसीह ने कहा, अरे इतने अच्छे काम मैंने तुम में किए, तुम्हारे मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, कोड़ियों को, इस सबब से मुझे संसार करते। कहते हैं नहीं, तू कुफर क्यों बकता है? इंसान होकर कहता है खुदा हूं। अरे वो कुफर नहीं, वो है। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। वो है। सुनो, एक हवाला देखें। चलो फिलिपियों के खत में आओ। क्या शानदार बात है। हालेलुया। कोई भी नहीं कहता हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है आपके पास? 2 बाब, फिलिपियों 2 बाब। हालेलुया। 2 बाब की 5 आयत। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। किस तरह का मिजाज रखो? जैसा कि मसीह यीशु का भी था। आगे, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझी, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सिलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर, ताकि यीशु के नाम, सब बोलो, ताकि यीशु के नाम पर, सब बोलो, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए, खुदा बाप के जलाल के लिए, मिलकर कहना है, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। अदावत से ना देखो। मैं कौमों से दरख्वास्त करता हूं, दरख्वास्त ही कर सकता हूं, अदावत की ऐनक उतार दो और मोहब्बत से मसीह के पास आकर देखो। रद्द करोगे तुम्हारी मर्जी है भाई, वरना एक वक्त आ रहा है, हर एक जुबान, चाहे आसमानियों की हो, जमीनियों की, उनके जो जमीन के, जुबान इकरार करेगी ते गोडे टेक के करेगी कि यीशु खुदावंद है। सुनो,
आज कौमें यीशु नाम को रद्द कर सकती हैं, रोक सकती हैं। कौमें यीशु मसीह को के नाम को रद्द कर सकती, उनका इख्तियार है, लेकिन वो यीशु नाम को मिटा नहीं सकती। कलीसिया को सताया जा सकता है, ये हकीकत है, क्योंकि कलीसिया को सताओगे तो मसीह को सताओगे। साउल जो था पहले, जो बाद में पालूस बना, वो कलीसिया को सताता था। यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? सताया जा सकता है कलीसिया को, लेकिन यकीन करो खुशखबरी को तुम कैद नहीं कर सकते। अब सुनो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह का। आमीन। सुनो, मसीह पर जुल्म किया, तशद्दुद किया गया, उसने बर्दाश्त किया। आमीन। मसीह को कत्ल किया गया, उसने मुआफ किया। आमीन। हम भी, आप जुल्म करो हम बर्दाश्त करेंगे, आप कत्ल करो हम मुआफ करेंगे, क्योंकि हम यीशु नाम पर ईमान रखते हैं। लेकिन एक दिन सताने वाले, कत्ल करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे और हम आसमान पर यीशु के साथ हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे, क्योंकि हम यीशु नाम पर ईमान रखते हैं। सारी दुनिया के लिए पैगाम है, अंजील का पैगाम है। आखिरी बात करने लगा हूं, सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है। ठंडे दिल से अदावत की ऐनक निकाल कर सुनो, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आदमी, इंसान नजात पाए। सिर्फ यीशु नाम है। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो।